A very good morning, students. Next comes Green's function. Let G be the region in the complex plane and let A belongs to G. Then a Green function of G with singularity at A is a function GA from the region G to R with the properties that GA is harmonic in G minus of A. ठीक है. Next is capital GZ is equals to GZ plus log mod of Z minus of A is harmonic in the disk about A. Next condition is limit of Z approaching to W, G Z is equals to 0 for all Z in W in extended plane. Next is Z is equals to A is the singularity of GA. If all these four properties will be true, तो हमारे पास क्या होगा कि जो function GA है वो क्या हो जाएगा? Green function. Is it right? Now let us start its remark. A green function, if it exists, is unique. We will suppose कि there exists two green function with singularity at A. And then applying the definition of green function on that two green function जो हम suppose करेंगे और फिर हम ultimately prove कर देंगे that two green functions were same. ठीक है. Let us start its proof. Let G be a region and let A belongs to G. Suppose GA and HA be the two green function with singularity at A. अगर GA और HA ग्रीन फंक्शन है तो मतलब GA के लिए भी ये फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी और HA के लिए भी ये फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी. तो विच मीन्स दैट GAZ plus log mod of Z minus of A and HAZ plus log mod of Z minus of A are harmonic in some disk about A. तो which means that इन दोनों की subtraction भी harmonic होगी, which means that GAZ minus HAZ is harmonic. Harmonic है तो means analytic. Analytic means differentiable. Differentiable means continuous. तो which implies that GA minus HAZ is continuous. Now लिमिट ऑफ Z अप्रोचिंग टू W, GA माइनस HAZ किसके इक्वल होगा? लिमिट सेपरेट करोगे दैट इज यू विल हैव लिमिट ऑफ Z अप्रोचिंग टू W GAZ माइनस लिमिट ऑफ Z अप्रोचिंग टू W HAZ. सिंस GA इज अ ग्रीन फंक्शन तो इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी. थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज लिमिट ऑफ Z अप्रोचिंग टू W GAZ इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल Z और W इन एक्सटेंडेड प्लेन. सिमिलरली HA भी हमारे पास क्या है? ग्रीन फंक्शन. तो इसका मतलब लिमिट ऑफ Z अप्रोचिंग टू W HAZ इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल W इन एक्सटेंडेड प्लेन. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0 फॉर ऑल W इन द एक्सटेंडेड प्लेन. 0 माइनस 0 इज 0 विच इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ Z अप्रोचिंग टू W GA माइनस HAZ इज इक्वल्स टू 0 for W belongs to extended plane. तो therefore by maximum principle हमारे पास क्या आ जाएगा? that GA minus HA is equivalent to 0 which implies that GA is equivalent to HA. means अगर हमने दो green function suppose करे थे with singularity at A तो वो ultimately वो दोनों green function क्या आ गए? same आ गए, which implies that a green function if exist is unique. which implies a green function if exist is unique. ठीक है. Next remark is green function is always positive. Complex plane has no green function with singularity at 0. Is it right? Now comes the theorem based on green function. Let G is a bounded Dirichlet region. G हमारे पास क्या दे रखा है? एक bounded Dirichlet region. means आप इसमें एक function suppose करोगे from boundary of G to R so that आप क्या apply कर सको? Dirichlet region की conditions को. ठीक है. Then for each A in G there is a green function on G with singularity at A. ठीक है. Let us start its proof. सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि what is green function. तो first you will define green function. अभी हमें मेंशन है कि G is a bounded Dirichlet region. तो आप क्या करोगे? एक फंक्शन डिफाइन करोगे f from boundary of G to R by fz is equals to log mod of z minus of A. तो ऑब्वियसली हमें पता है जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं. अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस. देन क्लियरली एफ ऑफ जेड इज कॉन्टिन्यूस. सिंस जी इज द Dirichlet रीजन वो हमें मेंशन है तो देयरफॉर बाय Dirichlet थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन यू फ्रॉम क्लोजर ऑफ जी टू आर विच इज हार्मोनिक इन जी एंड uz इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग्स टू बाउंड्री ऑफ जी. बट आपको प्रूफ क्या करना है कि दैट फॉर ईच ए इन जी देयर इज अ ग्रीन फंक्शन ऑन जी विथ सिंगुलरिटी एट ए. तो आप क्या करोगे? एक जी ए फंक्शन डिफाइन करोगे और उसमें
ऑल फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन को सेटिस्फाई करवाओगे तो यू विल गेट द रिजल्ट. ठीक है. नाउ डिफाइन जी ए फ्रॉम द रीजन जी टू आर बाय जी ए जेड इज इक्वल टू यू जेड माइनस लॉग मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ ए. क्लियरली यहीं से पता चल रहा है कि जी ए के पास सिंगुलैरिटी होगी एट जेड इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि जब आप जेड इज इक्वल्स टू ए पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा लॉग ज़ीरो, दैट इज इन्फिनिटी फॉर्म में. ठीक है. तो वी कैन डायरेक्टली से दैट जी ए इज सिंगुलैरिटी हैज़ अ सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल्स टू ए. तो यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है हमारे पास ग्रीन फंक्शन की. ऑल्सो यू जेड इज हार्मोनिक इन जी एंड लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ ए इज हार्मोनिक इन जी माइनस ऑफ ए. इसका मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किस में हार्मोनिक होगा? इट इज़ हार्मोनिक इन जी ऑफ जी माइनस ऑफ ए, विच मीन्स दैट जी ए जेड इज हार्मोनिक इन जी माइनस ऑफ ए. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी किसकी? ग्रीन फंक्शन की. नेक्स्ट वी आर टू प्रूव दैट जी ए जेड प्लस लॉग मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ ए इज हार्मोनिक इन सम डिस्क अबाउट जेड इज इक्वल्स टू ए. और एक प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है, दैट इज लिमिट ऑफ जेड अप्रोचिंग टू डब्ल्यू जी ए जेड इज इक्वल्स टू 0. नाउ यू नो दैट यू जेड इज हार्मोनिक. ठीक है. तो इसका मतलब यू जेड इज हार्मोनिक इन अ डिस्क अबाउट ए, क्योंकि ए तो जी में से ही जा रहा है. एंड यू जेड किसके इक्वल है? जी ए जेड प्लस लॉग ऑफ जेड माइनस ऑफ ए, which means that gaz plus log z minus of a is harmonic in some disk about z is equals to a. यहाँ पर हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई ग्रीन फंक्शन की. नाउ इट रिमेन्स टू प्रूव दैट कि अगर w बिलोंग कर रहा है एक्सटेंडेड प्लेन में तो बाउंड्री ऑफ g को, तो हमारे पास क्या आएगा? दैट लिमिट ऑफ z अप्रोचिंग टू w